Hello everyone, welcome back to my channel Study with Mass. In this video, we are going to study the continuation part of your lesson mensuration. So today I am going to teach you the introduction part to your 11.3 and 11.4 exercise. Without wasting the time, let us move to the introduction part. So in exercise 11.3 and 11.4, you are going to study about the solid shapes. I think you know already about the solid shapes. What are the solid shapes? तो आप लोगों को पता ही होगा. For example, I will take here 2D and 3D shapes. So in the introduction part of this mensuration lesson, I have already explained regarding 2D and 3D shapes. फिर भी एक बार इसको recall कर लेते हैं. 2D in the sense the figure which is having only two dimensions like length and breadth. Okay, and 3D in the sense the shape which is having three dimensions like length, breadth as well as height or depth. These are known as 3D figures. So here you are going to study about the three types of 3D shapes. First one is your cuboid, second one is your cube, third one is cylinder. Regarding these three solid shapes you are going to study. Okay, so what do you mean by cuboid or how it looks? Cuboid is a shape having how many faces? It is having 6 faces. For example, just consider this duster as a cuboid. Okay, but actually it is not. Why? Because all the faces are not in the rectangular shape here. But cuboid, you just consider it as a cuboid. Or I may take this. Yeah. This is cuboid only. Okay, this cuboid is having how many faces? It is having 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, and how many vertices it has? It is having 8 vertices. ठीक है, edges का तो आपको पता है 12 edges इसमें होते हैं. So each face is in which shape here? It is in rectangular shape. So each face is rectangle. Okay, if you take cube, so in cube as well all the faces are total 6 faces are there, 8 vertices are there, 12 edges are there like cuboid only, but each face is in which shape? It is in square shape. Each face is square. And coming to your cylinder, upper part is a circle and this part is a circle and middle portion it is in the form of rectangle. I hope आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. These three are very important 3D figures in this lesson. ओके, नेक्स्ट आपके एक्सरसाइज में इन्हीं 3 के बेसिस पे क्वेश्चंस आने वाले हैं. ठीक है, चलिए चलते हैं एक एक के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पा लेते हैं. ठीक है, सो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरियाज. सरफेस एरियाज इन द सेंस टोटल सरफेस एरिया or lateral surface area. Okay, you are going to study about the surface area. So I am taking first one is cuboid. ठीक है बेटा, तो मैं अब यहाँ पे cuboid को ड्रॉ कर रही हूँ. All the faces are rectangular shape. ठीक है, ए हो गया आपका लेंथ, दिस इज अ ब्रेड, दिस इज हाइट और डेप्थ. ए हो गया आपका क्यूबॉइड. नाउ हियर
you have to find the lateral surface area. Like how in the rectangle, what is the area of rectangle? It is length into breadth. ऐसे ही हम लोगों को क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड करना है. तो अब क्या होता है ना, एग्जाम्स में आपको फॉर्मूलाज याद नहीं रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक क्वेश्चन आपके क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया पे आ रहा है, तो आपको फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को छोड़ के ही आना पड़ेगा, है ना, विदाउट अटेंडिंग द क्वेश्चन. बट इफ यू नो कि फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, हाउ इट केम, तो फॉर्मूला विद इन अ टाइम आप एग्जाम में ही उसको थोड़ा सा डिराइव कर लोगे तो फॉर्मूला आपको मिल जाएगा. तो आपको क्वेश्चन को अटेंड किए बिना आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो समझ लो कि फॉर्मूला कैसे डिराइव हो रहा है. दैट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर. डेरिवेशन आल्सो मे कम इन योर एग्जामिनेशन. लेट अस डिराइव द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया. सो आई विल राइट हियर total surface area is equal to TSA, means total surface area, and one more area will come, that is lateral surface area. तो इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ. दिस इज अ क्यूबॉइड. ओके, दिस इज अ क्यूबॉइड. So these middle four faces are there, no? These four faces are known as lateral faces. अगर आप इन चार का एरिया फाइंड आउट कर रहे हो तो वो हो जाएगा आपका lateral surface area. And this face is known as top of the cuboid and this is the bottom of the cuboid. अगर आप इन चार फेसेस के एरिया के साथ इफ यू आर इंक्लूडिंग द एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बेस, देन इट बिकम्स योर total surface area. I hope it is clear. It is not only implemented to your cuboid, it is same for all other figure as well. Middle four faces जो होते हैं they are lateral faces, तो उनका एरिया हो जाएगा lateral surface area, and area of all the faces together means these four faces, this one and this one, complete 6 face area is total surface area. तो अगर आप इस क्यूबॉइड को ओपन करोगे तो इट मे लुक लाइक दिस. दिस इज नोन एज नेट ऑफ द क्यूबॉइड. ठीक है, दिस इज अ नेट ऑफ द क्यूबॉइड. अनफोल्डेड फिगर मैं उसको यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, अनफोल्डेड फिगर को. ठीक है, तो आपके सब फेसेस रेक्टेंगुलर होनी चाहिए. All faces should be rectangle. So middle four faces came. This is first face, second face, third face, as well as fourth face. So these four faces area is lateral surface area. This face is your top face and this is your bottom face. Okay, this is the net of the cuboid. Fifth and sixth face it is. ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे देख लो आप लोग. दिस इज लेंथ, मतलब व्हेन इट इज अनफोल्डेड ए हो जाएगा आपका लेंथ. ठीक है, ए हो जाएगा आपका ब्रेड. सिमिलरली इस साइड वाला पोर्शन आ जाएगा लेंथ एंड इस साइड वाला आ जाएगा ब्रेड. एंड रेस्ट ऑल जो ए लाइंस है ना, दीज आर द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड. तो जब आप इसको ओपन करोगे तो ए हो जाएगा आपका एल, ए हो जाएगा बी, एल बी मतलब होता है लेंथ ब्रेड, एंड ए हो जाएगा आपका हाइट. अकॉर्डिंग टू दैट I will name here. So this is your length. नहीं दिखेगा मोस्टली आपको. ठीक है, this is your length, this is your breadth, this is again length, this is breadth, and rest all these are height. Okay, h हो जाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4. Okay, and top and base के लिए it is a rectangle, but इसके लिए कोई हाइट है नहीं. So it can be length and breadth. I hope यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है ना. तो हमें अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इज वी वांट द एरिया ऑफ ऑल द फेसेस. ओके, तो हमें क्या करना है, ईच फेस इज इन विच शेप बेटा, ईच फेस किस शेप में है आपका, यस इट इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल. व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल,
इट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला को हमें लगाना है, लेंथ इंटू ब्रेथ ही हमें लगाना है, बट द नेमिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर रहे हो आप लोग या लेंथ इंटू ब्रेथ कर रहे हो आप लोग, बट नेमिंग इज h इंटू एल हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, बाय बिकॉज वी आर कंसिडरिंग हियर क्यूबॉइड, सो इट इज हैविंग हाइट। तो फॉर्मूला आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही अप्लाई करना है, बट अकॉर्डिंग टू दिस नेमिंग। सो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ऑल द फेसेस हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। सो आई विल राइट हियर एरिया ऑफ फर्स्ट फेस प्लस एरिया ऑफ सेकेंड फेस प्लस एरिया ऑफ थर्ड फेस प्लस एरिया ऑफ फोर्थ फेस, फिफ्थ फेस एंड सिक्स्थ फेस। ये हो जाएगा एरिया। मैंने सिर्फ 1 2 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, बट आपको समझना चाहिए दिस इज एरिया ऑफ ऑल द फेसेस। ओके, इक्वल टू हो जाएगा आपका फर्स्ट फेस में क्या आ रहा है बेटा, एरिया क्या हो जाएगा आपका, L इंटू एच हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द नेमिंग L इंटू एच हो जाएगा। राइट डाउन L इंटू एच प्लस सेकेंड फेस में क्या हो रहा है आपका, B इंटू एच हो रहा है, B इंटू एच प्लस थर्ड फेस में अगेन L इंटू एच हो जाएगा आपका, L इंटू एच प्लस फिफ्थ फेस में अगेन आपका हो जाएगा B इंटू एच। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो L इंटू एच कितने टाइम रिपीट हो रहा है, इट इज रिपीटिंग ट्वाइस, सो वी कैन राइट इट एज 2LH। LH इज इक्वल टू L इंटू, अगर कोई साइन नहीं है दोनों के बीच में, इट शोज कि मल्टीप्लीकेशन साइन इज प्रेजेंट। ओके, प्लस B इंटू एच कितनी बार रिपीट हो रहा है, अगेन इट इज रिपीटिंग ट्वाइस, सो इट कैन बी 2BH। ठीक है, नाउ व्हाट इज कॉमन इन ऑल, अगेन वन मोर थिंग इज देयर, नो ओके आई हैव रिटन ओनली 4 हियर, या वी हैव लेफ्ट फिफ्थ एंड सिक्स्थ फेस, है ना। तो फिफ्थ फेस का लेंथ क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा आपका लैटरल सरफेस एरिया। ओके, L इंटू बी एंड आपका सिक्स्थ फेस का हो जाएगा अगेन L इंटू बी। तो हाउ मेनी टाइम्स L इंटू बी इज रिपीटिंग, 2 टाइम्स LB इज रिपीटिंग। सो कॉमन क्या है इन ऑल द 3, कॉमन इज 2, टेक इट आउटसाइड। ठीक है, टेक इट आउटसाइड। अगेन एनीथिंग इज कॉमन हियर, L इस वाले में है बट इस वाले में नहीं है, तो अगर किसी एक में प्रेजेंट नहीं है देन दैट कैन नॉट बी कंसिडर एज अ कॉमन। ओके, तो आई होप यहाँ पे ओनली 2 इज कॉमन, रिमेनिंग क्या क्या है, LH प्लस BH प्लस LB। तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या रह गया है, अब LSA चाहिए हमें, लैटरल सरफेस एरिया की जरूरत है, तो हो जाएगा आपको इस वाले फेस को एंड इस वाले फेस को छोड़ देना है, ओनली दिस 4 फेसेस यू हैव टू कंसिडर। ठीक है, ओनली दिस 4 फेसेस को आपको लेना है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट फेस प्लस एरिया ऑफ सेकेंड फेस प्लस थर्ड फेस प्लस फोर्थ फेस, तो हो जाएगा आपका LH प्लस BH प्लस LH प्लस BH as I told in this. Okay, LH 2 टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स LH 2 टाइम्स BH, तो हो जाएगा आपका लैटरल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका, क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। ओके, 2 टेक आउटसाइड, L कॉमन है नहीं है, H कॉमन है, H टेक आउटसाइड, इनसाइड द ब्रैकेट L प्लस B। So 2 times L plus 2H into L plus B is the lateral surface area of cuboid. I hope आपको ये derivation समझ में आ गया होगा। अगर आप एग्जाम में if you cannot remember the formula then easily you can derive the formula and you will get the formula. Okay, ये वाला important है आपके 11.3 एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, 11.4 में आपका आ रहा है वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो दिस इंटू दिस इज योर वॉल्यूम इन द सेंस, अगर इस क्यूबॉइड के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं पेन डाल रही हूँ तो
तो इसके अंदर जो ये समा रहा है ना, इसको कहते हैं, जो इनसाइड गैप इज देयर नो, दैट इज नोन एज द वॉल्यूम. ओके, द स्पेस ऑफ दिस बॉक्स. ओके, क्यूबॉइडल बॉक्स, द स्पेस इनसाइड. तो ये हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, एल इंटू बी इंटू एच हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. तो क्यूबॉइड रिलेटेड 3 फॉर्मूलाज आ चुके हैं यहाँ पे, टीएसए, एलएसए एंड वॉल्यूम. फाइंड आउट करना भी आपको आता होगा. फॉर एग्जाम्पल आपका एल दिया गया है 2, बी दिया गया है 1 एंड एच दिया गया है 3. तो कैसे फाइंड आउट करोगे बेटा? एलएसए ले लो, एलएसए का फॉर्मूला अप्लाई कर दो. इट इज 2 टाइम्स एच इंटू एल प्लस बी. तो हो गया आपका, अप्लाई कर दो. 2 3 ज़ा 6 इंटू 2 प्लस 1 इज 3. सो 6 3 ज़ा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, या जो भी वहां पे यूनिट दिया जाता है उसको करना है. इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस. सो व्हेन इट इज गोइंग टू हेल्प इन द एप्लीकेशन, कहाँ पे हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन आ रहा है जनरली कि आपके रूम को पेंट करना है. यू हैव टू पेंट योर रूम्स. सो हाउ मच एरिया डज योर रूम इज हैविंग? ओके, सो दैट कितना पेंट चाहिए उसको काउंट करने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड, वी वांट द एरिया ऑफ द वॉल्स. वॉल्स लोगे तो विच फॉर्मूला डू यू अप्लाई? तो वॉल ले रहे हो तो कौन सा वाला फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कर रहे हो? ऑल मतलब कितने होते हैं? 4 वॉल्स होते हैं. 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या है? लैटरल सरफेस एरिया है. तो यू विल टेक the lateral surface area, then you can easily find the area of your room. 4 walls area of your room. अगर आपको सीलिंग को भी इंक्लूड करके पेंट करना है, you wanted to paint the ceiling as well, then you have to sum LSA plus area of ceiling. अगर आपको फ्लोर को भी पेंट करवाना है, then you have to take total surface area. In this way we can apply this formula. Okay, I hope this is clear. Let us move to the next one, that is cube. क्यूब में भी सेम आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं आएगा आपको, बस फॉर्मूला चेंज आएगा. व्हाई? बिकॉज इन क्यूब ऑल द साइड्स आर सेम, सो वी विल नॉट कंसिडर लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट हियर. ओके, सो ले लेते हैं योर क्यूब. ठीक है, क्यूब ले लिया हम लोगों ने. क्यूब कैसा होता है? इट इज आल्सो 3D फिगर. ठीक है, दिस इज अ क्यूब. सो अगर आप अनफोल्ड कर दोगे क्यूब को, हाउ इट लुक्स सिमिलर टू द फिगर विच आई हैव शोन यू, बट द थिंग इज ऑल द फेसेस आर इन द शेप ऑफ स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे जनरली आई एम कंसिडरिंग द स्क्वायर्स, बट दीज आर इमेजिनरी फिगर्स or the example, these are not exactly square. Okay, but you consider these as a square shape. ठीक है, okay. Now in this figure all the sides are same, so we will not consider length, breadth and height. ठीक है, तो आपका हो जाएगा वॉल्यूम. तो आप डायरेक्टली बता दो कि यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका. वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा आपका this one into this one into this one. सो हो जाएगा आपका a into a which is equal to a cube. ठीक है, वॉल्यूम तो पहले मिल चुका है हम लोगों को. अब हमें फाइंड आउट करना है TSA एंड LSA, टोटल सरफेस एरिया एंड लैटरल सरफेस एरिया को हमें अब फाइंड आउट करना चाहिए. ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट फेज, ये हो गया आपका सेकेंड फेज, दिस इज योर थर्ड फेज, दिस इज योर फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज एंड सिक्स्थ फेज. इन ऑल साइड्स आर इक्वल. तो हो जाएगा आपका ए, सब साइड्स सेम है तो यू हैव टू टेक ए. ठीक है, ए हो जाएगा सब कुछ, या जो भी लेटर आप ले रहे हो वो लेटर बन जाता है. ठीक है, जैसे मैंने कहा है मिडिल फेसेस, 4 फेसेस आर lateral faces. This is a top, this is a base, including all together area is which one? Total surface area. Yes, area of first face plus area of second face plus third face, fourth face, fifth face and sixth face.
कंप्लीट एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो हो जाएगा आपका एरिया ऑफ फर्स्ट फेस। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? यस, अब फिर से हम पीछे आ चुके हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इनटू साइड होता है, इट इज साइड स्क्वायर। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक साइड एक लिया हुआ है हमने, a इंटू ए हो जाएगा आपका ए स्क्वायर फर्स्ट फेस फॉर एरिया, सेकेंड फेस एरिया अगेन ए स्क्वायर, थर्ड फेस ए स्क्वायर, फोर्थ फेस ए स्क्वायर, fifth face a square and sixth face is a square. Total how many a square are there? There are 6 a square. This is your total surface area. ठीक है, अगर आपको दिया गया है a is equal to 2 centimeter, find the total surface area of given cube. How you will find? 6 into 2 square. So 6 into 2 to the 4. So 6 4 the 24 centimeter square. So in this way you have to find total surface area and lateral surface area. तो lateral surface तो हमने यहाँ पे find किया ही नहीं है अब तक, तो चलिए करते हैं। lateral surface area equal to area of 4 faces, middle 4 faces जिन्हें हम lateral faces कहते हैं। So first face is area a square, again a square, again a square, again a square। इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात है नहीं। ओके, सो ए स्क्वायर कितना ए स्क्वायर है बेटा? यहाँ पे देर आर 4 ए स्क्वायर। सो दिस इज योर लैटरल सरफेस एरिया फॉर्मूला। तो हो गया आपका लैटरल सरफेस एरिया इज 4 ए स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया इज 6 ए स्क्वायर, लैटरल सरफेस एरिया इज 4 ए स्क्वायर। फिनिश एंड योर वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज ए क्यूब। तो ए वाले 3 फॉर्मूला तो इजीली याद रह जाएंगे। तो अब हमने कितने फॉर्मूलाज को पढ़ लिया यहाँ पे? First 3 formulas for your cuboid, next 3 formulas for your cube, remaining 1 solid shape. Which one is that? That is cylinder. Let us study. तो अब आ जाएगा आपका सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर को ले लेना है आपको। You draw cylinder and do you know how it will be? How it looks? It's net of the cylinder. कैसे दिखता होगा? Draw first cylinder here. This is your cylinder. ठीक है, when you will unfold this, how it looks? It looks like this. Upper face is circle, bottom face is circle, and middle face is rectangle. ऐसे आपका क्या नजर आ रहा है? सिलेंडर। अगर एग्जाम्पल आपके लिए चाहिए, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, देन आई विल शो यू। आई हैव अ पेपर विथ मी। इट इज इन विच शेप बेटा? दिस इज अ रेक्टेंगुलर शेप। ओके, सो आई नीड टू मेक अ सिलेंडर। व्हाट आई विल डू? आई विल जस्ट रोटेट दिस लाइक दिस। ठीक है, बन गया है ना सिलेंडर, बट अपर एंड बॉटम फेस इज ओपन। यहाँ पे हमें क्या स्टिक करना होगा? 2 circular shape we have to take and we have to stick it here, and here it converts into a cylinder, है ना? तो मिडल फेस विच शेप? रेक्टेंगल। अपर फेस तो यहाँ पे है नहीं, बट उसका बाउंड्री यहाँ पे है। बाउंड्री ऑफ द अपर फेस इज हियर। इट विच शेप इट इज? इट इज अ सर्कुलर शेप एंड दिस इज आल्सो अ सर्कल, इज इट? तो complete unfolded model looks like this. Okay, now we want the, this is exactly the height हो जाएगा यहाँ पे according to rectangle. This is length, this is breadth, right? But this is according to cylinder, ये हो जाएगा आपका height. तो this part is height. Okay, this is height. ठीक है? Okay, then आपका breadth हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? See, this breadth is converted in which shape here? और breadth और length. Okay, ये वाला अगर breadth ले रहे हो, this is a length. Okay, fine. तो अगर आप इसको सिलेंडर बना रहे हो तो this is looking like something. What it is? This is a boundary of the circle. Is it? Boundary of the circle. Boundary of the circle is known as perimeter of the circle. Yes, good. Then again another name is circumference of the circle. तो आपका length हो जाएगा, you cannot write here L. Why? Because
when you will convert it in the cylinder, it is the boundary of the top or the bottom face. It is in the form of circle, so it is your circumference of the circle. What is the formula for circumference of the circle? That is 2 pi r. So your length is 2 pi r. तो ये हो जाएगा आपका 2 pi r. ठीक है? And you know that the complete area we want of these two face, area of circle is pi r square and this area of circle is pi r square. तो आपको सब कुछ मिल चुका है यहाँ पे. Now find total surface area is equal to area of all the faces. Area of all the faces as we studied in cube and cuboid. ठीक है, एरिया ऑफ ऑल दी फेसेस. तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ दिस मिडल फेस और एरिया ऑफ टॉप फेस, व्हाट इट इज, पाई आर स्क्वायर. इट इज इन सर्कुलर शेप, सो इट बिकम्स पाई आर स्क्वायर इज प्लस एरिया ऑफ बॉटम शेप ले लो, इट इज आल्सो पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ दिस मिडल स्पेस. इट इज इन द रेक्टेंगल बट नेमिंग्स आर डिफरेंट. रेक्टेंगल एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड. तो हो जाएगा आपका लेंथ इनटू ब्रेड, बट आपका लेंथ क्या है यहाँ पे 2 पाई आर इनटू ब्रेड क्या है यहाँ पे h है, सो इट बिकम्स 2 पाई आर h. ओके, नाउ पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर h. नाउ व्हाट इज कॉमन, टेक इट आउटसाइड. 2 is common both in both. Pi is common, pi take it outside. R is common, take it outside. तो यहाँ पे एक R बाहर चला गया है, remaining is another R plus in this H is remaining. This is your total surface area of the cylinder. So 2 pi R into R plus H is the formula for total surface area of cylinder. Okay, now चलते हैं lateral surface area की ओर. LSA. LSA is the surface area of only this portion. तो इस वाले पोर्शन का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इट इज पाई 2 पाई r एंड h. तो कुछ है ही नहीं क्योंकि रेक्टेंगल है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ करना है हमें. ओके, 2 पाई r h हो जाएगा आपका lateral surface area. Length into breadth 2 pi r into h is 2 pi r h. Okay, this is clear. Then आते हैं अपने वॉल्यूम की ओर. वॉल्यूम इज नथिंग बट बेस इनटू हाइट. ओके, बेस इनटू हाइट हो जाएगा आपका. सो इट इज बेस इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर एंड हाइट इज h. सो 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर, h is the area of volume of the cylinder. So in this also we have studied how many formulas? 3 formulas here also. So total surface area of cylinder is 2 pi r into r plus h. LSA of lateral surface area of cylinder is 2 pi r h and volume of the cylinder is pi r square h. Hope this is clear and you have enjoyed this class. तो next लाइफ में अगर कभी भी ये वाले फॉर्मूलाज आ रहे हैं तो आप मुझे याद कर लेना. वाई, बिकॉज यू हैव स्टडीड द कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूलाज. सो अब कोई चांस ही नहीं है फॉर्मूला को भूलने का. तो बने रहिए मेरे साथ. तो अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं 11.3 एंड 11.4. तब तक के लिए बाय बाय.